Good evening, Bharat. So the number of cases are going up. It's been an unprecedented spike that we've seen in the last 24 hours. But where are these coming from? The states which are actively reporting novel coronavirus cases, are these coming in largely from already identified clusters or hotspots? Or are these new ones? And is it still largely an urban phenomenon? There are a lot of aspects to consider, but more importantly, we need to realize that physical distancing, social distancing is no longer a buzzword. It has to now become a way of life. It has to become a habit, just like we comb our hair, we groom ourselves, we brush our teeth, we wake up in the morning. So let's get into the debate. Bharat beyond the 17th of May. What next is the question? Life versus livelihood. Lockdown 4.0 versus livelihood with COVID-19. Where do you stand? Tell us, tweet us. You can use at CNN News 18 as the handle where you can tweet in, or at Anchor Anand, that's my personal handle. Tell us what you think. We'll keep monitoring the comments and take it across to our guests. Nupur Sharma of the BJP with us, Deepak Singhal, former UP Chief Secretary with us, Sunil Alag, SK Advisors Chairman with us, and he made some very pointed observations the other day. He's also written elaborately about it. And Dr. Niranjan Hiranandani, NAREDCO President, NAREDCO, and also ASSOCHAM President. But let me ask you this, Deepak ji. Is if a controlled environment and a country like Singapore felt the pinch of opening up, and there was a second round, and then they realized that they were too soon. The Spanish flu 100 years ago, when they opened up, it was a second wave that was critical to us. What do I do in India, जहाँ कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी, एवरी 4 कोस, हर 4 कोस में चीजें बदल जाती हैं हमारे यहाँ, तो आप कैसे वन साइज फिट्स ऑल कर सकते हो? What applies to Kerala doesn't apply to Maharashtra, आनंद जी देखिए, or Delhi, or UP. Anand ji, I have been telling since beginning, if you I've been with you so many times that the only solution is decentralized decision making. और डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में जब किया जाएगा तो धारावी को किसी बुलंदशहर के गांव से कंपेयर नहीं किया जा सकता. हर जगह की प्रॉब्लम्स आर एंटायरली सेपरेट, द सॉल्यूशंस आर एंटायरली सेपरेट. आपने खुद ही कहा 4 कोस में भाषा बदले, 4 कोस में सब कुछ बदले. तो हम इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े देश में हमने जो दिशा तय कर दी है, जो अब तक एक्सपीरियंसेस दुनिया के सब सीख लिए हैं, मेरे ख्याल से अब वी हैव टू थिंक हाउ टू हैव टू गो अहेड and to live with it. Now there is no question of having unnecessary fear. We have to have a positive mind and we have to go ahead with it. Now careful is a very difficult word, but if we have to go ahead, I will tell you some ground realities. ज़मीनी हकीकत को जानना ज़रूरी होगा. हमने खोल दिया, अब आपको वो 2-3 में ज़मीनी हकीकत बताऊंगा जो हो रही हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि लिमिट करने में इसको कठिनाइयाँ क्या हैं. आज आप ओपीडी में किसी को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर कहता है पहले आप कोविड का सर्टिफिकेट लाइए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आपका टेस्ट होता नहीं है, इसका मतलब बाकी बीमारियों से मरते रहिए. आज जो मर रहे हैं, बाकी आपको कोविड की चिंता, बाकी बीमारियों की चिंता नहीं है. ये ग्राउंड रियलिटी. आज नोएडा का कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है आपको जब तक आप कोविड का सर्टिफिकेट नहीं लाइएगा. सो इट मीन्स यू हैव टू टेल टू एवरीवन कि भाई यू हैव टू स्टार्ट योर ओपीडीज एंड डोंट बॉदर. बट यू नो इट्स ए बिग स्केरी काइंड ऑफ सिचुएशन. क्वारंटाइन सेंटर्स, now we have to change the policy of quarantine centers. There is no need of putting everyone in the quarantine. We have to really promote home quarantines. किसी को छोटी मोटी symptom हो जाती है, unless until he has to be having a problem which has got to be hospitalized, you have to change entirely the policy of quarantine. I heard recently government of India has done so, but it states तक पहुँचते जैसे अलग साहब कह रहे थे, इतना वक्त लग जाता है कि लोगों में टाइम दिक्कत हो जाती है. Thirdly, ground reality, जिसमें उन्होंने कहा कि मनी सप्लाई और मनी और डिमांड के बीच में neither supply will help nor demand will help. You have to have a optimal combination of money supply and demand both. चौथी चीज, जो लोग लौट रहे हैं, माइग्रेशन लेबर की जो दुर्दशा है ग्राउंड पे, मेरे को तो दर्द आता है. अब तो मतलब इतने साल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखने के बाद और देश में रहने के बाद, अगर आदमी रेल की पटरी में 16 लोग मर जाएं और लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं, ये दुर्दशा की स्थिति है. मैं बार बार इस बात में कहता हूँ कि ये पहले दिन ही हम लेट हो गए इसमें, और हमको पहले दिन ही बसें लगा के सबको अब लोगों के अंदर बीमारियां पैदा करके गांव में भेज रहे हो. पहले आप बिना पैदा करके गांव में भेज देते, ज़्यादा अच्छा वो ज़्यादा होता है, अब ज़्यादा भेजना अच्छा है. लेकिन फिर भी लेट नहीं है. अब सबको इज्जत के साथ घर के बाहर भेज दें, और भेजने के बाद फिर उसको, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्वराज चलो गाँव की ओर. आपसे मैंने लास्ट कई बार कहा है, अब हमने
ऑलरेडी 7-8 दिन में 25,000 फैमिली से जी। ब्लॉक में कर लिया है। अगर वो डाटा सक्सेसफुल हो गया, वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, तो कम से कम आप हर जगह पे लोकल एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, किसी को शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कुल मिला के कि आपको लॉकआउट लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ेगा। अब उस फिलॉसफी से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ गया। लेकिन आपको खोलते हुए साथ में ये सावधानी जो बरतनी है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन सब सीख गए हैं, लेकिन इम्यूनिटी के फॉर्मूला भी सबके दिमाग में और भरने पड़ेंगे। राइट। आप घर में जो ये देसी फॉर्मूला, दादा नानी के फॉर्मूले हैं, जो इम्यूनिटी के फॉर्मूले हैं, उस सब पर एक और बात है दीपक जी, देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। तो ये Well, Deepak Singhal ji and then Nupur Sharma. I have limited time. Deepak ji, do you agree, disagree? How do we go about this now? नहीं, आई एग्री विद व्हाट मिस्टर अलग हैज सेड, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, दीज आर टू ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड्स, लाइव एंड लाइवलीहुड। एवरीवन इज स्पीकिंग के दीज टू ब्यूटीफुल वर्ड्स। अब लाइवलीहुड का मतलब क्या है? हमको सबको कमाना, खाना है, जीना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स इफ इंग्लिश, वी शुड से एज अ ग्राउंड कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? आप कहते हैं लाइवलीहुड अच्छी करिए। नोएडा में 10,000 इंडस्ट्री में से 2,000 इंडस्ट्री अभी खुल भी गई हैं, उसमें से 2,000 इंडस्ट्री में 30% लेबर रह गई है, उसका रॉ मटेरियल कहीं से आ नहीं रहा, फिनिश प्रोडक्ट कहीं जा नहीं रहा। तो आपको टोटलिटी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लाइवलीहुड का प्रश्न है। आप कहते हैं नरेगा में सब खूब जॉब मिलने चाहिए। अभी हीरानंदानी साहब ने कहा है कि नरेगा में, अब नरेगा में स्टेट्स का बजट कितना अवेलेबल है, नरेगा में क्या है, जितनी लेबर लौट पाई है 15-20 लाख लेबर, उस सारे को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा 90 दिन का। ये तो ये कैलकुलेशन करके जो ग्राउंड पे जो डिलीवरी होती है, और उसमें एक हमारे जो एक जनरल स्टेटमेंट होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसके माइक्रो प्लान बना के हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें। बार बार मैं इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि यू हैव टू है कि चलो गांव की ओर, चलो ब्लॉक की ओर। और आपको, जैसे मैं आपको मनरेगा का एग्जांपल बता दूं एज एडमिनिस्ट्रेटर, आज हर गांव में झगड़े होते हैं। इसी अवधि का फायदा उठा के आप चक्रोड खुलवा लीजिए सारे गांव की, आधे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर मान लीजिए गूल खुलवा लीजिए, तो हर खेत में, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं पानी पहुंचाओ, तो हर खेत में पानी। यूपी में 2.5 लाख किलोमीटर गूल टूटी पड़ी है, खेत में पानी कहीं पहुंचता नहीं है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करके और इस लेबर को यूज़ करके अगर ग्राउंड पे अगर हम इकोनॉमिक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा चीज़ जो है क्वारंटाइन को, मैंने कहा होम क्वारंटाइन को बढ़ावा दे दीजिए। एक लास्ट चीज़ और कहूँगा आनंद जी आपको, मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जितना डॉक्टर्स को जानता हूँ, चारों डॉक्टर्स को देश में, एक उन्होंने सलाह दी है कि IgG अगर आपका पॉजिटिव होगा और IgM नेगेटिव होगा तो इंडिया कैन बिकम ए प्लाज्मा बैंक फॉर द वर्ल्ड। यहाँ इतनी हर्ड इम्यूनिटी है। अगर आप 16 से 44 में मैंने पढ़ा कि अगर इफ यू हैव दिस स्मॉल पॉक्स, तो इंडिया के ग्वालों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। यू हैव टू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी हैव सो मच ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। तो अगर मान लीजिए रैपिड टेस्टिंग मास लेवल पे करा दी जाएगी अच्छे किट से, तो देन यू विल हैव ए फैंटास्टिक सोल्यूशन। ये फियर खत्म हो जाएगा। अगर मेरे को पता है कि मेरे अंदर IgG पॉजिटिव है, तो मैं खुल के जाऊंगा ना बाहर। मेरे को जो मिलने आ रहा है, मैं उसके ऊपर ग्लव्स क्यों पहनाऊंगा अगर उसका IgG पॉजिटिव है? तो बेसिकली ये है बहुत कॉमन सेंस की बात, लेकिन मैं इसको मेडिकल लोग इसको एग्जामिन कर लें। और मेरे को ये फिर लास्ट में कहना है कि जितने पैकेजेस की बात हो रही है, अब उनको बक्से से बाहर निकलना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्री और ये जो अभी हीरानंदानी साहब ने कहा सबको पैकेजेस मिलने चाहिए। अब 40 दिन में 40 बार तो हम लोग सब डिबेट कर चुके हैं कि पैकेजेस मिलने चाहिए। अब समय आ गया, जब दिख जाएगा, कुछ हवा में निकलेंगे तो बाहर अच्छा लगेगा जी। सब देना चाह रहे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, मनी सप्लाई की प्रॉब्लम है, फिस्कल भी प्रॉब्लम्स हैं। वक्त आ गया है कि फिस्कल और मॉनेटरी इश्यूज पे सब फैसले जल्दी जल्दी ले लेने चाहिए। Bilkul, and I think these decisions will be taken. The Prime Minister is having this extended meeting with the Chief Ministers of the various states, and it is still on because he wants this decision to come from collectively from the states, because he wants to hold them all responsible for the final decision that's been taken. We may know it tonight or perhaps tomorrow morning.